Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 17th lecture of quality engineering. So, in previous series of the lecture, we start the another new chapter from your syllabus, which is about the designing for the qualities, right? And we try to discuss the basic introductions about the concurrent engineering. So, in today's lecture, we also try to learn something new about one of the new topic from this chapter, which is the QFD, which is the quality function deployments. Uh, from the exam point of view, the quality function deployment is a very crucial task or a very crucial questions. It's normally which is asked in the examinations. Write a short note about the QFD from this chapters. So I think you should try to understand the QFD, which is the quality function deployment, very seriously. This is a very important topic. मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक मैं आपको थोड़ा इजी करके इसको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ये क्यूएफटी जो है ना, वो भी एक अप्रोच ही है, एक तरीके का अप्रोच है। जैसे हमने सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने टी क्यू एम के बारे में पढ़ा था, तो ये भी एक तरीके का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए जो है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के लिए जो ऐसे कंसेप्ट यूज़ होते हैं, वे भी ये भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है जो नॉर्मली बहुत सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये जो टेक्निक जो है वो आज यूज़ हो रही है। So let's start the discussions over the quality function deployments. So the quality function deployment is what? First we have to divided these three words. The first, which is the quality, second, which is the function, and third, which is the deployments. So the quality, that means a meeting a customer's requirement. What is the basic things about the quality? The quality is just nothing. You have to satisfy the requirements of the customer, what the customer is wants from your product. If you are meet the requirements of the customer, if you match the requirements of the customer, your product is should be considered into the quality product. Then the functions, what is the functions? So what must be done? Sorry, what must be done? And focusing on attentions. आपको जो है वो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो है आपको क्या जो है एज अ कंपल्सरी में करना चाहिए। और द सेकेंड, विच इज फोकसिंग ऑन द अटेंशंस, you should try to focus on the some kind of the attention. In what perspectives you have to pay your attentions, this is the functions. And the deployment is who will do it and when, right? तो बेसिकली आपका इस चीज़ से क्या समझ में आएगा कि एक तो आपको किस चीज़ के ऊपर जो है वो आपको अटेंशन जो है वो फोकस जो है वो डेवलप करना चाहिए, कैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको मीट करना चाहिए, आपको अचीव करना चाहिए। और ये दोनों चीज़ किस चीज़ पे फोकस करना, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करना, और ये दोनों चीज़ जो है वो कब और कौन करेगा, दैट इज़ द डिप्लॉयमेंट्स। सो बेसिकली क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट्स जो है वो कस्टमर फोकस, कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है, राइट? So what is the QFT? Let's start the detailed definitions of the QFT, a method for developing a design quality, right? ये एक मेथड है जो which is developing for the developing a design quality which is aimed at satisfying the customer and then translating the customer's demand. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो किसी ना किसी तरीके से जो है वो उनकी कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करना, और दैट डिमांड्स ऑफ दैट कस्टमर यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू डिज़ाइन टारगेट. And a major quality assurance point is to be used throughout the
आउट ऑफ द प्रोडक्शन फेज आपको किसी ना किसी उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जो है आपको मेजर तरीके से उस डिमांड्स को कैसे एक डिज़ाइन टारगेट के तौर के ऊपर मेजर उसको अटेंशंस पाके जो है आप किस तरीके से एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट जो है क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स जो है जिसको यूज़ करते हैं आप अपने प्रोडक्शन फेज में उसको डेवलप्ड कर सकते हैं. सो अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस फॉर रीचिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये जो है वो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जो एक स्लोली गोइंग प्रोसेस है जिससे आप जो है वो कस्टमर की डिमांड को जो है वो अचीव करके उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. अ सिस्टमेटिक वे टू डिफाइन अ विनिंग बिजनेस, ये इस तरीके से जो है वो आप एक सिस्टमेटिक तौर पे अगर काम करोगे, राइट, दिस इज अ सिस्टमेटिक वे टू डिफाइन अ विनिंग बिजनेस जिससे आप बिजनेस को गेन कर सकते हो एंड अ conquering a business model, product and the service. So a method for QFT क्या है? तो QFT जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप डिज़ाइन क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स डिमांड, और you have to translate the demand customers demand into the design quality as a design target and make it a major quality assurance point. इसको आपको एक बहुत बड़ा क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट जो है जिस प्रोडक्ट से कस्टमर को जो है वो एश्योर मिल सके, वो प्रोडक्ट देख के ही वो एश्योरेंस मिल सके, तो आपको उतना एश्योरेंस जो है वो प्रोडक्ट को बनाना है, राइट, टू यूज़ थ्रू आउट द प्रोडक्शन फेज. ये पूरे फेज प्रोडक्शन फेज में आपको उसको हर एक स्टेज के अंदर आपको एश्योरेंस डेवलप्ड करते हुए इस प्रोडक्ट को बनाना है एज ए क्वालिटी, एज ए डिज़ाइन क्वालिटी, तो ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं और इससे आप जो है वो अपने बिजनेस गोल्स जो है वो विन कर सकते हैं. So this is the basically about the quality function deployments, and which is also called as another quality management system which is also a QMS. इसको जो है कोई कोई लोग जो है उस QMS भी बोलते हैं, इसको जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी जो है भी वो भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं. A developed to bring a personal interface to a modern industries. We can develop to bring a personal interface to modern industries, जिससे जो है वो एक तरीके के मॉडर्न इंटरफेस जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो जनरेट होगा. द लिंक्स दी नीडेड of the customer with the design, engineering, production, service, functions in the suppliers organizations. So ये सारी चीज़ से जो है वो कस्टमर की रिलेट करेगा, जैसे कि हो गया आपका डिज़ाइन, हो गया इंजीनियरिंग, हो गया प्रोडक्शन, हो गया सर्विस, हो गया फंक्शंस इन दी सप्लायर्स ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये सारी चीज़ को कुल मिला के जो है वो इस तरीके से जो है QFD के अंदर कवर होता है. So, where the QFD is initially originated, a quality function deployment is derived from a 6 Chinese character with a Japanese kanji pronunciations. So, the quality functions जो है वो बेसिकली 6 जापानीज शब्दों को जोड़ के जो है वो बनाया गया था with the Japanese kanji pronunciations. So the hin setsu, the quality hin that and setsu, that means what? A quality features attributes qualifies. Then ki no, that is a function mechanism, and tenkai sorry, the tenkai, that means a deployment, diffusions, developments or evaluations. So how do we understand the quality that our customers expect and make it happens in a dynamic way? किस तरीके से हम जो है इसको समझ सकते हैं द क्वालिटी दैट इज आवर कस्टमर्स एक्सपेक्ट,
जो क्वालिटी है वो अपने कस्टमर जो है जो चाहते हैं वो चीज़ है, एंड मेक इट हैपन इन अ डायनामिक वे। किस तरीके से हम इस चीज़ को जो है एक डायनामिक वे के थ्रू जो है इसको बना सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो बेसिकली जो है वो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है वो 6 चाइनीज वर्ड के साथ एक जापानीज कांजी वर्ड्स को जो है प्रोनाउंसिएशंस मिला के जो है ये इसका ओरिजिनेशंस हुआ था। तो बेसिकली उसका क्वालिटी के फीचर्स के साथ इसको कैसे मैकेनाइज करके इसको कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है जिससे हम लोग अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शंस को अचीव कर सकते हैं, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था और वो भी डायनामिक तौर पे। सो बेसिकली ये जो है द क्यूएफडी विच हु इज द क्यूएफडी विच इज डेवलप्ड बाय योजी आकाओ, हु इज डेवलप्ड a QFD in Japan in 1966 with the aim of developing a design quality aim at satisfying the consumer and then translating the consumer's demand into a design target and a major quality assurance points to be throughout the production phases. The QFD is a way to assure the design quality while in the product is in the design stage, which is about the definitions of the originations goal of the Yoji Akao, right? The history of the QFD, let's start the discussions over the history of QFD. The history of the QFD is starts in the 1972 where a first application is at the Mitsubishi Japan. पहले जो है 1972 के अंदर पहले ये QFD को जो है किसी ने यूज़ किया तो वो मित्सुबिशी कॉरपोरेशंस ने यूज़ किया था जापान के अंदर। Then after the 4 years 1976 the QFD implementations in the production of mini vans of the Toyota। उसके बाद 4 साल के बाद 76 के अंदर टोयोटा ने ये QFD टेक्निक जो है उसको अपने मिनी जो वैन थी वो बनाने के अंदर यूज़ किया। Then in 79 the 20% of the reduction in startup cost in launch of a new van, जिससे 79 के अंदर उनका जो है वो 20% जो कोस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया जो नई वान उन्होंने बनाई थी। इन 82 a 38% रिडक्शंस इन द कोस्ट, और जो है वो एक बोल सकते हैं कि उन्होंने 76 में स्टार्ट किया था, 6 साल के बाद उनका टोटल जो कोस्ट वो वैन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो था वो रिड्यूस होके वो 38% तक वो कोस्ट जो है वो रिड्यूस हो चुका था। देन इन 84 68% which is the cumulative reductions in the cost, and 84 the first which is introduced in the USA। उसके बाद 84 के बाद इन्होंने जो है ये QFD कंसेप्ट अब ग्लोबल होने लगा था और अब जापान के अलावा और कंट्रीज़ जो है वो भी इस कंसेप्ट को यूज़ करने लगे थे। तो 84 से जो है ये कंसेप्ट जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो है वो आ चुका था। The main goal in the implementations of the QFD, first you have to prioritize a spoken and unspoken customers' wants and needs। आपको जो है वो कस्टमर के द्वारा बोले गए और कस्टमर के द्वारा ना बोले गए कस्टमर की जो वांट्स है, डिज़ायर्स है, उसको आपको उस ज़रूरत को आपको समझना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। देन ट्रांसलेट दिस नीड्स इनटू अ टेक्निकल कैरेक्टराइजेशंस एंड द स्पेसिफिकेशन। अब आप उस कस्टमर की डिमांड्स जो है, आप उस कस्टमर की जो वांट्स हैं उसको जो है उसकी नीड्स जो है उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसके टेक्निकल कैरेक्टराइजेशंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अंदर। अब उसके बाद तीसरा गोल हो जाएगा आपका बिल्ड एंड डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट और अ सर्विस बाय फोकसिंग एवरीबडी टूवर्ड्स अ कस्टमर सेटिस्फेक्शंस। तो ये
तीन जो है वो बेसिक जो है इसके गोल्स हैं, जिससे इसको इम्प्लीमेंट करके जो है वो क्यू एफ डी से आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वो बेसिक गोल क्या हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के। तो आपको कस्टमर की वांट्स को जो है वो उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, व्हाट द कस्टमर इज वांट्स फ्रॉम द योर प्रोडक्ट। Then you have to translate these needs of the customer into the technical characterizations and the specifications, and after that you have to build or deliver a quality product or a service by focusing everybody towards customer satisfaction. आपको ऐसी सर्विस और ऐसी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को देनी चाहिए जिससे आप उसके ऊपर फोकस करके टूवर्ड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप फोकस करके आप ऐसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। नाउ व्हाट the whose peoples are involving in the QFD team. So basically the QFD team has a need of this task, which is the first they are start with the design, then quality assurance, then purchase, then productions, and then marketing. All are involved in the role of achieving or implementations और इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी इनटू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे आपको मैंने बताया कि टोयोटा वाले जो है वो अपने वैन के अंदर जो है ये टेक्निक उन्होंने यूज़ की, और यूज़ करते करते जो है उसने एक बेंचमार्किंग बना दिया कि उसने अपने वैन के अंदर जो है वो इनिशियली जो है उनकी कॉस्ट 20% रिड्यूस करके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशंस करके कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए उन्होंने 38% तक कॉस्ट रिड्यूस की। और एक क्यूमुलेटिव तरीके से आप बोल सकते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट से जो है जो पहले विदाउट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द क्यूएफडी वो लोग जो है वो जो जिस प्राइस के अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था उससे एक कम्युनिटिव तौर के ऊपर 68% तक रिड्यूस कॉस्ट करके वो वैन बनाने लगे थे। तो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस इज अ समराइज इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द QFD टीम्स, whether they need the involvement of the design, production, purchase, QA, productions, and marketing, right? Then what are the benefits of the QFD? The first, with the implementations of the QFD, they are reducing a product development time up to 50%, जिससे जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट टाइम जो है वो आपका डेवलपमेंट टाइम जो है वो 50% जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। So if you are try to implementations of the QFD concept in your new product development, your new product development time will be reduced by 50%. This is the first and most effective advantage or benefit. The second, the design cycle time, which is shortened by द 30 to 50%। आपका जो डिज़ाइन किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करने का जो साइकिल टाइम रहता है न्यू प्रोडक्ट के लिए वो आपका 30 से 50% तक जो है वो कम हो जाएगा। द स्टार्टअप एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस बाय 20 to 60%। आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई न्यू स्टार्टअप वेंचर खड़ा कर रहे हैं, राइट, और आपके इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स के लिए जो है उसका कॉस्ट जो लगता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 20 to 60% आर इट्स टू बी रिड्यूस्ड। देन रिड्यूसेस अ टाइम्स टू मार्केट में उसको पहुंचाने के लिए जो टाइम लगेगा आपको प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करने में, अगर आप नॉर्मल कंसेप्चुअली एकदम ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रहे हैं तो तब आपका प्रोडक्ट आई थिंक लॉन्च करने में आपको 3 to 4 साल लगते हैं। अब with the implementations of the QFT concept, I think your time to launch the product in your market, it will be reduced to the very low time, with using the low time, right? Then we are focuses on the organizations on the customers rate। अब organizations के अंदर जो है एक ऐसा conceptual thinking जो है वो बन जाएगा कि everyone who is involved in this production cycle, who is involved in the organization, they all are focusing on the customer's need, what the customer is wants from the product, right? Then the second, the useful for gathering the customer's requirements। अब आप जैसे
ये बहुत अच्छी तरह से ये टेक्निक जो है वो काम लगती है जैसे हम लोग अपने कस्टमर से फीडबैक लाते हैं, राइट। तो ये कस्टमर के फीडबैक जो इकट्ठे करने में जो है वो ऐसी टेक्निक जो है क्यूएफटी जैसी टेक्निक जो है बहुत अच्छी तरह से काम करती है। देन द डिज़ाइन क्वालिटी विच इज़ इम्प्रूव बाय द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द क्यूएफडी कंसेप्ट, जिससे आप क्यूएफडी कंसेप्ट यूज़ करने से आपका जो डिज़ाइन क्वालिटी है वो डिज़ाइन क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगी। देन second, which is improve the performance of the product with using the QFD technique, the performance of the product it will be improved. Then the reduce the warranties and the field service cost, right। आपको वारंटी के अंदर जो है आपको अगर आपका इतना प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होगा और आपको कुछ ऐसे डाउट्स है कि इसके अंदर आपको 3 to 4 साल की वारंटीज़ देनी पड़ेगी, अगर कोई मेंटेनेंस आने के चांसेस है, सर्विस के पीछे जो आपका कॉस्ट लगता है किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो ये आपका जो है वो वारंटी और द सर्विस कॉस्ट जो है वो मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट वो आपका क्यूएफडी इम्प्लीमेंटेशन से जो है वो आपका कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। देन रिड्यूस द रीवर्क, आपका जो किसी ना किसी टाइम, मनी वेस्ट, ह्यूमन पावर्स, ये रीवर्क के पीछे जो आपका लगता है वो सारा रीवर्क अगर कम हो गया तो फिर आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये बन जाएगा कि आपका रिवर्क के साथ कॉस्ट भी ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। देन इट्स एनेबल्स कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, जिससे आप कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली जो है इस कंसेप्ट के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। देन एनेबल्स द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, आप इस कंसेप्चुअल थिंकिंग से जो है वो आप अपने कॉम्पिटिटर्स जो है उसको भी आप बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो आप समझ सकते हैं। व्हाट द कॉम्पिटिटर इज ट्राई टू give the some kind of the input into the market, and what your next steps to make a better product, or the launch the product before the competitor is launch that product into the markets. So these are the very basics and common benefits of the implementations of the QFD. Then now what the voice of the customers, what the customer is saying about the QFD, we can say that the represents the requirements of the customers। तो ये QFD जो है वो एक तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट्स करते हैं। QFD is a technique to record every requirements as expressed by the customers and take a conclusive decisions about the voice of the customer। QFD टेक्निक से जो है वो सारे अपने फीडबैक जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जो भी एक तरीके से रिक्वायरमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कस्टमर के एक्सपीरियंसेस है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड टेक अ कंक्लूसिव डिसीजन, जिससे जो है वो आप एक कंक्लूसिव और एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले सकते हैं जिससे आप कस्टमर की आवाज़ को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकें अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो दिस इज़ द वॉइस ऑफ द कस्टमर्स अबाउट द QFD। Now, what kind of the problems are faced during the implementations of the QFD? So, if all the relational matrices is combines into a single deployments, अगर आप सारे जो आपके पास एक रिलेशन मैट्रिक्स है आप उसको एक सिंगल डिप्लॉयमेंट के, अगर कौन करेगा ये चीज़, उस डिप्लॉयमेंट के अंदर आप उसको कंबाइन करने की कोशिश करें, द साइज ऑफ ईच ऑफ द कंबाइंड रिलेशन मैट्रिसेस इज वुड बी वेरी लार्ज। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कौन और कब इसको डिप्लॉय करेगा, इस तरीके के नीड्स को, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। द QFD इज़ ए क्वालिटेटिव मेथड सॉरी, द QFD जो है वो एक तरीके का क्वालिटेटिव methods हैं। Due to the ambiguity is in the voice of the customers, many of the answers that a customer is gives are difficult to categorize the demands। तो ये जो है वो पूरा एक कस्टमर ओरिएंटेड थिंग्स है, राइट। कस्टमर ओरिएंटेशन से जो है वो डेवलप्ड किया गया हुआ टेक्निक है, और कभी कभी जो है वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में इतना जो है वो क्लैरिटी नहीं होती उनको लोगों को।
तो उनकी जो डिमांड्स है तो कस्टमर जो है वो प्रॉपर तरीके से वो आंसर नहीं कर पाते, और एक तरीके से जो है वो एक उस तरीके की नीड्स और डिमांड्स को जो है वो कैसे कैटेगराइज करना उस डिमांड को, वो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है. इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द कनेक्शंस बिटवीन अ कस्टमर डिमांड्स एंड द टेक्निकल प्रॉपर्टीज, राइट. ये जो प्रॉब्लम है विच इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, आप कस्टमर की डिमांड को तो पहचान लिए, पर उसको जो है वो किस तरीके से एक टेक्निकल कैरेक्टराइजेशंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कैसे कन्वर्ट करना, वो एक जो है वो डिफ़िकल्ट जो है वो टास्क जो है वो आपकी QFD के अंदर जो है वो नॉर्मली डेवलप्ड होता है. अ QFD इज़ नॉट ए अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द एप्लीकेशंस. आप समझ लीजिए कि QFD जो है वो हर एक एप्लीकेशंस के लिए जो है वो ये नहीं हो सकता कि वो अप्रोप्रिएट है. वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और उस प्रोडक्ट के लिए जो है वो ये QFD वाला कंसेप्ट कितना यूज़फुल हो सकता है. तो ये डिफ़िकल्टीज़ और ये तरीके के जो प्रॉब्लम्स जो है वो QFDs के अंदर जो है वो फेस्ड होते हैं. द हाउस ऑफ क्वालिटी द ट्रांसलेट द वॉइस ऑफ द कस्टमर्स इनटू द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स दैट मीट द स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू and match those against how an organization will meet those requirements. This is the house of qualities. So what is the applications of the QFD? The QFD which is used in the productions, or we can say in the manufacturing field, maintenance fields, in the kind of the service provider, or in design courses and the curriculums. So QFD जो है वो डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन के कोर्सेज और करिकुलम के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर, प्रोडक्शंस मैन्युफैक्चरिंग्स के अंदर नॉर्मली यूज़ होते हैं. देन वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो यूज इन द डिज़ाइन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स, एरोस्पेस एप्लीकेशंस एंड मिलिट्री नीड्स के अंदर जो है वो QFD टेक्निक्स जो है वो नॉर्मली यूज़ की जाती है. देन who are using which are the multinational company who are using the QFD concept. So first you can see that the Nissan organizations, then the Toyota corporations, then the Komatsu is also using the QFD technique for their product developments. Then Nippon Denso is also using the QFD concept. Then the Honda, then the Ford, both are the automobile companies. They are all are using some kind of the QFD concept for that for their product. So these are the everything what we have to understand during these lectures about the QFD. What is the basic about the QFD? हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को मिला के एक आपको पूरा जो है वो क्लस्टर बना के QFD के बारे में दिया है. आई थिंक you properly understand the basic things about the QFD, benefits of the QFD, methodologies of the QFD, how to implementations of the QFD, what are the kind of the applications, what are kind of the problems they are facing the implementations in the QFD, and who are using still now using some kind of the QFD like concept for their organizations. So this is the basic things about the QFD. And you have to try to understand these basic things about the QFD. Normally in exam they are asking one of the short questions or the long questions or as a short note about the QFD, so you can write all of these things in the QFD. So this is all about the today's lecture. If you have certain kind of the doubt questions in this topic, you can ask their questions or doubts into the comment sections. I will definitely solve your queries into the next series of the lectures. After watching this video lecture, you have to write your enrollment number into the comment sections. It will count it as a online attendance. So please, it is compulsory for all of the students. So please take it very seriously. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.